Hello students, let's continue chapter Plant Kingdom, and the last topic of this chapter is plant life cycles and alternation of generation. So this is the last topic of this chapter. So bachcho, you have already seen that the life cycle of bryophytes, pteridophytes, but we have not studied so far gymnosperm and angiosperm life cycle. So let's start it with the algae. So before I start the life cycle pattern, I must tell you that there are two types of pattern in their life cycle. One is haplontic, other one is diplontic. You know what is haplontic, right? And what is diplontic? Haplontic means the haploid number of chromosomes. Okay, and meiosis and mitosis, you all are aware. Meiosis is a kind of cell division in which the number gets reduced and number gets half. Okay, in the daughter cells, but in mitosis number remains same in the daughter cells. Okay, so let's start with the algae, the Thallophyta. But the algae's main plant body is always haploid. Not always, there are some exception cases as well. This we will discuss later. So let's see, this algae has a main plant body which is haploid. Because it produces gametes, so we name it gametophyte. You know it, right? So कोई भी plant body जो gametes बनाती है हम उसको बोलते हैं gametophyte. अगर वो spore बनाएगी we call it sporophyte. So algae की main plant body जो कि gamete बनाएगी will be gametophyte. Okay? So this gametophyte will produce gamete, and gamete बनाने के process आपको पता है कहलाती है gametogenesis. ठीक है? So ये main plant body है. इसने गैमेटोजेनेसिस यानी गैमीट बनाए. उन दो गैमीट्स ने आपस में सिनगेमी यानी कि फर्टिलाइजेशन करा एंड देन जाइगोट बना. क्योंकि गैमीट्स जब बनेंगे तो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड. और बच्चों ये जो मेन प्लांट बॉडी ये भी हैप्लॉइड है. एंड द गैमीट्स आर जो गैमीट्स बनेंगे गैमीट्स विल बी हैप्लॉइड. सो ये जो गैमीट्स बने हैं एन इन दोनों ने आपस में फ्यूज करा. सिंगेमी मीन्स फर्टिलाइजेशन और फिर जाइगोट बन गया जो कि डिप्लॉयड है. बट ये जो जाइगोट है ये डिप्लॉयड है और जो मेन प्लांट है वो है हैप्लॉयड. तो दिस जाइगोट विल नॉट टर्न इनटू और विल नॉट बिकम द मेन प्लांट because it is diploid and this is haploid. Number has to be haploid. So this zygote rests for some time, and this zygote while it is resting, what it does is it develops a thick layer around it which protect the zygote from the unsuitable environment. Okay, so उसके बाद जब जितने टाइम तक भी हार्श कंडीशंस रहेंगी zygote will rest. उसी रेस्ट के दौरान जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी ये जो zygote है ये मियोसिस करेगा. मियोसिस मतलब अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर गेट्स रिड्यूस्ड. तो बच्चों ये देखिए मियोसिस में जो भी स्पोर्स बन रहे हैं तो जाइगोट विल फॉर्म स्पोर्स. ये जो स्पोर्स बन रहे हैं ये हैप्लॉइड है क्योंकि सब डिवीजन जो है मियोसिस हो रहा है. अब ये जो स्पोर्स बने ये स्पोर्स डायरेक्टली नए एल्गी में डेवलप हो जाएंगे. सो दिस विल डेवलप इनटू अ न्यू एल्गी और अ न्यू प्लांट बॉडी. सो बच्चों यहाँ पे कि इसकी जो मेन लाइफ साइकिल है दिस विल बी कॉल्ड एज हैप्लॉन्टिक बिकॉज द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड. Gametes are haploid, spores are haploid. The diploid phase only comes in the zygote stage. That is for a while. Okay, so the main plant body is haploid, gametes haploid, spores haploid. So this you see there's the most of the in the life pattern you see the haploid stage is dominating. So that is why this is haplontic life cycle. So bachcho all the algae, most of the algae show this kind of life cycle, haplontic life cycle. But there are some cases as well which are given in the book which are algae but does not show haplontic life cycle. So those algae are given in this page. बच्चों ऐसी algae जो कि algae होने के बावजूद भी haplontic life cycle show नहीं करती हैं. Example is Ectocarpus, पॉलीसिफोनिया एंड कैल्प्स. ये तीनों ही हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की जगह हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न शो करते हैं. हैप्लोडिप्लॉन्टिक अभी हम स्टडी करेंगे. एंड बच्चों एक और एल्गी है फ्यूकस.
This fucus algae show diplontic life cycle. So please you must learn, you must remember these. Ectocarpus, Polycyphonia, Calps are haplodiplontic. जबकि जो फ्यूकस है इट इज डिप्लॉन्टिक, दे शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. इनको छोड़कर all the algae show this kind of life cycle. Okay, and then the next is diplontic life cycle. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो करता है? ऐसे प्लांट जो कि सीड बनाते हैं. सीड कौन बनाता है? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, दोनों ही सीड प्रोड्यूस करते हैं. तो बच्चों जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दोनों की ही लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होगी. कैसे? देखिए ये मेन प्लांट है जो कि डिप्लॉयड है. ठीक है, दिस इज द मेन प्लांट बॉडी विच इज डिप्लॉयड. सो दिस मेन प्लांट बॉडी विच इज डिप्लॉयड, दिस इज स्पोरोफाइट. दिस इज कॉल्ड स्पोरोफाइट. दिस स्पोरोफाइट क्योंकि ये डिप्लॉयड है, देन दिस विल बी 2n. नाउ दिस विल प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस. ऑल द स्पोर्स आर हैप्लॉयड बिकॉज मियोसिस हो रहा है. सो दीज स्पोर्स विल प्रोड्यूस अ गैमेटोफाइट. ओके, दिस स्पोर्स विल जर्मिनेट इनटू अ गैमेटोफाइट. फिर से देखते हैं, स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ, स्पोर्स बने. अब स्पोर्स से डायरेक्टली प्लांट नहीं बना, उन स्पोर्स ने क्या करा, वो स्पोर्स एक गैमेटोफाइट में डेवलप हुए. फिर गैमेटोफाइट ने गैमिट्स बनाए बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस. गैमिट्स ने आपस में फ्यूज करा और बन गया जाइगोट. क्योंकि ये जाइगोट डिप्लॉयड है एंड मेन प्लांट बॉडी भी डिप्लॉयड है, दिस जाइगोट विल बिकम अ प्लांट. सो आप यहाँ पर देख रहे हैं द मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड. ओके, द जाइगोट इज डिप्लॉयड. ओनली आप देख रहे हैं इसके लाइफ में जो पैटर्न आया है हैप्लॉयड का, हैप्लॉन्टिक का, वो बस स्पोर्स और गैमेटोफाइट तक आया है, बट द मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड. सो इस तरीके की लाइफ साइकिल कहलाती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. एंड दिस लाइफ साइकिल शोज बाय जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो कि सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं. ओके, अब बच्चों नेक्स्ट टाइप की लाइफ साइकिल इट इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. इसमें दोनों नाम है, हैप्लॉन्टिक से हैप्लो, डिप्लॉन्टिक से डिप्लो. सो नाउ दिस इज क्लियरली अंडरस्टूड कि इस टाइप के प्लांट्स दोनों तरीके का पैटर्न शो करेंगे, हैप्लॉइड भी एंड डिप्लॉइड भी. ऐसे कौन से प्लांट हैं बच्चों? ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. सो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ये दोनों ही इस तरीके का पैटर्न शो करेंगे. अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट होता है. एंड टेरिडोफाइट में उसके अपोजिट था, मेन प्लांट बॉडी वॉज स्पोरोफाइट. सो ये है मेन प्लांट बॉडी. लेट्स अज्यूम लाइक इट्स अ ब्रायोफाइट. सो द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट. ओके, अभी गैमेटोफाइट मियोसिस की प्रोसेस, सॉरी ये गैमेटोफाइट गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू गैमिट्स बनाएगी. वो गैमिट्स आपस में फ्यूज करेंगे, देन जाइगोट विल फॉर्म. ये जाइगोट डेवलप हो जाएगा इन अ स्पोरोफाइट. ओके, सो दिस स्पोरोफाइट is directly developing from zygote. So this sporophyte is diploid, but the main plant body is haploid. Okay, so this sporophyte will undergo a process of meiosis and produce haploid spores, and these spores will germinate into a gametophyte. Okay, let's see it again. The main plant body is gametophyte, which is haploid, right? Now it is producing gamete by the process of gametogenesis. Now the gametes are developed, they will fertilize, and this fertilization is called as syngamy. After fertilization, zygote will form, diploid, and this zygote will become a sporophyte. Fine. This sporophyte undergo a process of cell division, meiosis. So these sporophyte will produce spore by the process of meiosis. And now these spores, after dispersal from this sporophyte, will develop into a gametophyte. So यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लाइफ साइकिल का पैटर्न है, दो तरीके का. यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक स्पोर्स हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, गैमेट्स हैप्लॉइड. ओके, zygote is diploid and sporophyte is diploid. So इसके alternation of generation मिल रहा है. इसके लाइफ साइकिल में एक बार तो हैप्लॉइड स्टेज आ रही है एंड देन डिप्लॉइड स्टेज आ रही है. हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, देन हैप्लॉइड एंड देन डिप्लॉइड.
So this kind of alternation of generation, haploid, diploid, haploid, diploid, this is called as haplodiplontic life cycle. It is the characteristic feature of all the bryophytes and pteridophytes. They show this kind of life cycle, haplodiplontic. So बच्चों, let's revise once again. Haplontic life cycle shows by algae, but not by all the algae. Some algae, Ectocarpus, Polysiphonia, Kelps and Fucus, they do not show haplontic life cycle. Then जितने भी seed bearing plants हैं जैसे कि Gymnosperm and Angiosperm, वो सारे show करेंगे diplontic life cycle. Bryophyte and pteridophytes, they will show haplodiplontic life cycle. And this is called as alternation of generation because जो generation है वो alter हो रही है, haploid then diploid. Okay, so this is called as alternation of generation.